So now we start with lecture number 9, which is a continuation of lecture number 8, externalities chapter. So let's start. So we start this chapter with the topic market signals. Market signal is nothing. This is the discussion that we already had in the lecture number 8, where we discussed that collaboration is Pareto efficient for them, right? So now we will discuss this collaboration from the bees and the apple orchard example. For example, now if there are bees, so there is a beekeeper who maintain bees for producing honey, and next to him is an apple orchard. So now what happens? We can't control where the bees go. So now the beekeeper, he uses bees to produce honey. Now in the process, they also go to the apple orchard and they pollinate the apples, the flowers or the apples, right? When they pollinate it, it is beneficial for the apple orchard. So that means these bees, apart from producing honeys, they are also pollinating the apple orchard. So that means they are creating positive externality. So when the beekeeper is deciding the number of bees to keep, so he is not taking the effect of this positive externality that he is causing on the apple orchard, right? So now this B star would be less than B hat. B hat is basically अगर ये भी सोच लेता कि ये B ज्यादा रखने से apple orchard का भी फायदा हो रहा है, right? So then he would have kept more B. So in this case, intervention is required. A market for B is required where both of them either collaborate. Why? Because then they will have more bees, they will produce honey together, they will produce apples together, and then both of them will be benefited by the collaboration. This is internalizing the externality. In practical scenario, what happens is that these apple orchards, whenever they are there, so there are bee services. So there is a market for bees. So what these bee services do, they go to the apple orchard. Their main task is to maintain bees in a large number so that they can give services to the apple orchard and charge some rupees for it. So this pollination does not automatically happen as per the environment. It happens when bee services are provided by these bee keeper, right? So this is one example where there is a market for these bee services, and this is how the positive externality is taken into account, either by internalizing the externality, either by maintaining a market for bees, or either for this, right? So this is another example. Now let's move to another thing, tragedy of commons. We know that हमने ये देखा नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज में, जैसे ही हमने प्रॉपर्टी राइट्स डिफाइन करे, the moment we define property right, the problem of externality problem was solved. And efficient, basically Pareto efficient outcome जो था वो achieve हो गया था. Now what we do is, in the same case, property rights are very important. So now we will discuss a grazing ground. So there is a grazing ground, and we will discuss two cases. कि grazing ground किसी एक private player का, it is privately owned. So now in this case, this grazing ground is used for producing cows. So the total output from the cows is this much. So cows जब grazing ground पे work करती हैं, so basically when they go to the grazing out, so this is the total output that the cows produce, output by cows. Now एक cost cow को खरीदने की cost is A, और number of cows जो grazing ground पे जाती है, they are C. So now in this case, what the village keeper would finalize is cows को यूज करके वो कितना मिल्क या आउटपुट प्रोड्यूस करे, इतना. सो बेसिकली वो कितनी काउज रखनी है उसको डिसाइड करना है. तो वो क्या करेगा, इस पूरे को सी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेगा. सो व्हाट वी हैव इज एम डैश सी. दिस इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ काउस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ काउ. तो एक काउ से कितना आउटपुट आ रहा है और एक काउ की कौन सी क्या कॉस्ट है, तो मार्जिन पे वो कंपेयर करेगा. इन दिस केस दिस मच, ये जो आंसर आएगा, और ए स्टार जो काउज है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे. बट नाउ मोस्टली क्या होता है, ऐसे जो लैंड्स होते हैं वो प्राइवेटली ओन नहीं होते, दे बिलोंग टू द कॉमन पीपल. दीज ग्राउंड्स आर कॉमन ग्राउंड्स. तो अब इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ कॉमन ग्राउंड और उस पे सी काउज ऑलरेडी जो है वो जाती है. अब नाउ आई एम अ फार्मर,
I am a basically grazer, so I have to decide that whether I want to take my cow to land for grazing or not. So what I will do is, now I don't have a cow till now. So what is the cost of cow? A. Now if I take my cow there, so now total output, अब already C cows are there. If I take my cow there, तो total cows कितनी हो गई? C+1. तो अब मैं C+1 काउस को अगर वहां लेकर जाती हूँ, तो अब मेरा टोटल आउटपुट कितना प्रोड्यूस होता है? इतना आउटपुट मेरा प्रोड्यूस होता है। लेकिन मेरी जो ये पर काउ कितना आउटपुट है, मेरे पास तो एक ही काउ है, तो C+1 टोटल काउस है, तो ये जो टोटल आउटपुट C+1 काउस प्रोड्यूस करेंगी अपॉन C+1, ये तुम्हारा आ गया एवरेज आउटपुट प्रोड्यूस बाय वन काउ। सो मैं तब तक काउज लेकर अपनी जाऊंगी जब तक मेरा ये जो मैं सी, तो बेसिकली मैं जो काउ लेकर जा रही हूँ C+1th काउ, इससे जो मेरा आउटपुट प्रोड्यूस होता है, राइट, ये जब तक कॉस्ट ऑफ काउ से ज्यादा नहीं है, आई विल टेक दैट। जब तक दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, आई विल टेक दिस। नाउ इन दिस केस व्हाट वी आर डूइंग इज, इस केस में मैक्सिमाइजेशन ऐसे हो रही है कि कोई भी इंसान तब तक काउज लेकर जाएगा, यानी कितनी काउज होंगी दैट इज डिटरमाइंड बाय, ये क्या है, टोटल प्रोडक्ट, ठीक है, सी डैश कार्स अपॉन सी हैट इज इक्वल टू ए। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ सी डैश काउस, एवरेज एक काउ का कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है इज इक्वल टू एक काउ की कितनी कॉस्ट है। तो अब ये कंडीशन डिफरेंट है ये वाली कंडीशन से। जब एक प्राइवेट ओनर था तो वो क्या कर रहा था, मार्जिनल प्रोडक्ट को ए से कंपेयर कर रहा था। लेकिन यहाँ पर जब ऑलरेडी सी काउज है और मेरे को C+1 काउ लेकर जानी है, तो मैं ये कंडीशन कंपेयर कर रही हूँ, मैं अपने आउटपुट को मैक्सिमाइज नहीं कर रही, आई एम basically comparing. I will take number of cows are determined by this, basically average product is equal to A will determine my A hat. In this case now अगर हम इसको सॉल्व करें तो दिस कंडीशन इज इक्वल टू दिस, तो दैट मीन्स हम उतनी काउस लेकर जाएंगे जब तक आउटपुट जो है, जब तक जो प्रॉफिट्स है काउस को ले जाने का वो जीरो ना हो जाए। नाउ दिस इज नॉट मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स, आई एम जस्ट इक्वेटिंग प्रॉफिट्स, आई एम चूजिंग सी बार सच दैट प्रॉफिट्स आर इक्वल टू जीरो, आई एम नॉट मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स इन दिस केस। तो अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली देखूं तो ये मेरा एपी कर्व है, हमें पता है दैट एमपी इज ऑलवेज लेस देन एपी assuming TP is rising at a diminishing rate। तो ये AP और MP का ऐसा कर्व बनेगा। If you are not aware of this, please revisit your law of diminishing marginal returns और law of variable proportion। Now in this case, अगर AP और MP ऐसे है, ठीक है, अब इस केस में AP is A is this, A क्या है हमारा marginal cost which is constant, एक काउ की cost। AP is equal to A at this point. This point is basically C hat. That is this. AC is equal to MP at C star. So this is basically what we see is C star is less than C hat. तो यानी कि अगर एक इंडिविजुअल डिसीजन लेगा कि मेरे को कितनी काउज लेके जानी है अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए, तो वो कम काउज लेकर जाएगा। लेकिन अगर एक कॉमन ग्राउंड है और कोई प्रॉपर्टी राइट नहीं है, तो कितनी काउज जाएंगी, ज्यादा काउज जाएंगी। तो यानी कि ये जो अमाउंट, ये जो ज्यादा काउज जा रही है, इस वजह से क्या हो जाएगा, ओवर ग्रेजिंग हो जाएगी, जो हमारा लैंड है वो एक्सप्लॉइट होगा। तो इसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ, ट्रेजेडी ऑफ, यानी क्योंकि कोई प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है उसकी लैंड की, उस वजह से ज्यादा काउज लेकर जाएंगे जितनी जानी चाहिए। एफिशिएंसी के लिए हमें MP इज इक्वल टू एक काउज लेके जानी चाहिए, लेकिन एफिशिएंसी नहीं है तो हम ज्यादा काउज लेकर जा रहे हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, प्रॉपर्टी राइट्स एस्टैब्लिश होनी चाहिए, या तो हम किसी एक इंसान को बोले ये आपका लैंड है, आपको ध्यान रखना है। सेकंड, अगर प्रॉपर्टी राइट्स नहीं भी एस्टैब्लिश कर सकते तो एक लीगल सिस्टम हो सकता है जो बोले कि सिर्फ C स्टार काउज जाएंगी, इससे ज्यादा काउज जो है वो नहीं जाएंगी। ठीक है, तो अब ये वाला जो एग्जांपल है ये सिर्फ इस केस में वैलिड नहीं है। ओवर फिशिंग, ऐसे इंस्टेंसेस हैं जब ओवर फिशिंग होती है और काफी फिश खराब हो जाती है, इस वजह से लीगल लॉज बनाए जाते हैं कि आप इतने फार्मर्स, हम इतने फिशरमैन को ही फिशिंग करने देंगे, एंड सो ऑन। उसके बाद एक ऑटोमोबाइल का एग्जांपल भी डिस्कस करें, लेट्स डिस्कस दैट। हमें पता है पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन ज्यादा होने की वजह से अब क्या है, एयर जो है ना उस पे किसी का प्रॉपर्टी राइट नहीं है। बेसिकली यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है,
ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स है, क्योंकि ये किसी एक इंसान की नहीं है एयर, तो हर कोई इसको एक्सप्लॉइट करता है, तो हर कोई उसको ओवर यूज करता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम हर कंपनी को कहते हैं जो भी कार्स है, व्हीकल्स है, उसमें आप एक किट इम्पोज करो, जिससे जो हमारा पॉल्यूशन है वो कंट्रोल हो जाए। सपोज इस किट का प्राइस है $1500। अब हर कार में जब ये किट इम्पोज होगा तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी मैन्युफैक्चरर की। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि किट इम्पोज हर कार में क्यों करना। आप देखो हर कार जो है वो अलग स्पीड पे चल रही है, उसकी मेंटेनेंस अलग है, तो ऑब्वियसली अगर किसी कार की मेंटेनेंस ज्यादा है तो वो 1500 दोनों कार्स पे अगर स्पेंड है तो उससे पॉल्यूशन जो है वो कम पॉल्यूट होगा। तो रैदर देन कि हम एक स्टैंडर्ड हर कार में ये किट इम्पोज करें, लेट्स डू वन थिंग कि जो यूजर्स हैं हर कार में एक हम बैरोमीटर हम कुछ लगाते हैं, जिससे हम स्टडी कर सकें कि इस कार से कितने इमिशंस हो रहे हैं। इससे क्या होगा, अगर मेरे पास एक कार है और मुझे पता है कि मैं उसके इमिशंस के लिए प्राइस पे कर रही हूँ, तो उसकी वजह से मैं अपनी इमिशंस को कम करने की कोशिश करूंगी। राइट, आई विल टेक अटेम्प्ट्स टू रिड्यूस पॉल्यूशन। ये रिड्यूस पॉल्यूशन करने की मैं बहुत कोशिश करूंगी, अगर मेरे को पता है कि हर यूनिट जो मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ उसका मुझे कॉस्ट देना पड़ रहा है, रैदर देन कि एक किट इम्पोज कर दिया और उसमें अब क्या है कि मैं कुछ कंट्रोल करने के लिए, पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए कुछ अटेम्प्ट्स नहीं कर रही, उसकी सर्विसिंग नहीं करा रही एंड ऑल दैट। सो नाउ इन दिस केस अनदर एडवांटेज कि हो सकता है कि कुछ जगह जो पॉल्यूशन है वो बहुत ज्यादा है, तो उसमें जब हम ये टैक्स लगाएंगे इमिशंस पे तो ज्यादा फायदा होगा, और कुछ एरियाज हैं जहाँ पर इमिशन बहुत कम है तो वहां ये टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है, वहां ये स्टैंडर्ड किट लगा देते हैं। सो अब क्या है कि हमें ये पॉलिसीज कंपेयर करनी पड़ेगी कि कौन सी पॉलिसीज लगानी है। क्या हमें इमिशन, जहां पर देखो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, ये इमिशन पे टैक्स लगाएंगे सो दैट सब लोग अपना पॉल्यूशन कम करें। ऑन द अदर हैंड जहां पर पॉल्यूशन कम है तो हम उनको ये किट लगा देंगे, क्योंकि उसमें क्या होगा कि किट एक बार लग गया तो उसमें वी डोंट हैव टू बेसिकली मॉनिटर अगेन एंड अगेन कि ये कितना पॉल्यूशन प्रोड्यूस कर रहा है। जब पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है तो हम इमिशन पे टैक्स लगाएंगे, इसमें क्या होगा, मॉनिटरिंग की कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी, बट दैट इज, इसका बेनिफिट क्या है कि पॉल्यूशन असली में कम हो जाएगा, क्योंकि हर कोई कोशिश करेगा। तो हर केस में हमें ये डिसाइड करने के लिए कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कौन सी पॉलिसी लगेगी, हमें पता लगाना है कि पॉल्यूशन ऑलरेडी कितना है उस स्टेट में, ठीक है, और क्या मॉनिटरिंग जब हम करेंगे तो उसकी कॉस्ट क्या है, तो हम ये कौन सी पॉलिसी सही है, वी नीड टू वे द बेनिफिट्स एंड कॉस्ट for controlling pollution. So this is just an example of pollution being a negative externality. Why? Because again, there is tragedy of commons. Air belongs to none. Air जो है वो किसी की नहीं है, right? So that means everyone uses it in excess. हमें पता है जब कोई property rights नहीं define होती, so this is there is overuse. So this was all about tragedy of commons. This finishes the externality except a small topic is left. We left this topic in lecture number 8. So let's discuss this. कोटास की बात करें तो अब देखो दो फर्म्स हैं, दोनों फर्म्स को पॉल्यूशन कंट्रोल करनी है। अब लेकिन ना क्या है, दोनों फर्म्स एक जैसी नहीं है। ये जो फर्म नंबर 1 है इसकी जो अबेटमेंट कॉस्ट है, यानी पॉल्यूशन को कम करने की जो कॉस्ट है वो काफी कम है, और फर्म नंबर 2 की जो पॉल्यूशन को कम करने की कॉस्ट, अबेटमेंट कॉस्ट है, वो बहुत ज्यादा है। अब इस वजह से क्या होता है, दोनों को बोलते हैं कि आप एक्स बार इतना अमाउंट पॉल्यूशन जो है वो मेंटेन करिए, हाफ हाफ जो है आप कट करिए। लेकिन अब इस केस में क्योंकि फर्म 1 की अबेटमेंट कॉस्ट कम है, तो अब इसमें वो क्या करेगी, ये इतना पॉल्यूशन जो उसको बोला प्रोड्यूस करने के लिए वो इससे भी कम करेगी। तो यानी पॉल्यूशन जो फर्म 1 प्रोड्यूस कर रही है वो काफी कम प्रोड्यूस करेगी जितना उससे बोला है। और अब क्या करेगी, जितना उसके पास परमिट्स बचे हैं, तो बेसिकली ये परमिट्स दिए गए थे, जितने बचे हैं इट विल सेल द परमिट्स टू फर्म 2। अब ये जो फर्म 2 क्या करेगी, दिस विल परचेज द परमिट्स फ्रॉम फर्म 1, और इसकी जो अबेटमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा है तो ये क्या होगा कि ज्यादा पॉल्यूशन प्रोड्यूस करेगी, तो उससे कम पॉल्यूशन को कम नहीं कर पाएगी, क्योंकि जैसे ही वो पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश करेगी उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो इससे बेटर ये क्या करेगी, ये फर्म 1 से ये जो परमिट्स है ये बाय कर लेगी।
इसको हम pollution vouchers बोलते हैं. This was a small example that I missed, so I wanted to cover this. So this finishes your externality. Let's have a quick revision of what all was there. सबसे पहले हमने ये देखा कि कैसे एजवर्थ बॉक्स में हमने एक्सटर्नैलिटी को ड्रॉ करा कि कैसे उसमें ट्रेडिंग और परेटो एफिशिएंसी अचीव है. फिर हमने उसका एक स्पेशल केस देखा, क्वाज़ी लीनियर प्रेफरेंसेस और पोस्ट थ्योरम का, वेरी इंपॉर्टेंट हेयर. देन हमने स्टील का एग्जांपल लिया जिसमें हमने एक नॉर्मल केस देखा. उसके बाद हमने उसके सॉल्यूशन देखा कि कैसे एफिशिएंट सॉल्यूशन नहीं है, कैसे एक्स स्टार प्रोड्यूस है और एक्स डैश हार्ड प्रोड्यूस होना चाहिए इसके सॉल्यूशन. हमने इंटरनलाइजिंग देखा, प्रॉपर्टी राइट्स एस्टैब्लिश करना देखा, हमने पिगोवियन टैक्स की बात करी, तो ये हमने सॉल्यूशंस की बात करी. उसके बाद हमने बी का एग्जांपल भी देखा और देखा कि उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं. उसके बाद हमने ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स का एग्जाम्पल भी किया और न्यूमेरिकल भी किया. उसके बाद हमने लास्ट में एक बात करी ओवर फिशिंग का एग्जाम्पल का, कि ओवर फिशिंग क्यों होती है, क्योंकि इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स. और उसके बाद हमने एयर पॉल्यूशन की भी बात करी विच इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेजेडी ऑफ कॉमन. तो जिसमें ट्रेजेडी ऑफ कॉमन में हमने ये देखा कि जब प्रॉपर्टी राइट्स एस्टैब्लिश होते हैं तो कोई एक्सटर्नैलिटी नहीं होती, लेकिन क्योंकि प्रॉपर्टी राइट्स एस्टैब्लिश नहीं हो पाते, सो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ ओवर यूज एंड दिस leads to a negative externality for the others. So this was all about externality. In the next lecture, we will start with the last unit, which is the last chapter, public goods. So this, like with this lecture, 80% of your course is done. Only one more unit, public goods, is left now.